NCERT English classes. My name is Manisha Shrivastava. Today I am here to explain Hornbill Bill's Chapter 1, which is for students of class 11. The name of the chapter is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. In this video, I will cover about the author, about the title, chapter sketch and characters, and chapter explanation. First of all, I would like to tell you something about the author of the story, who is Khushwant Singh. Khushwant Singh was a well-known Indian author, literary critic, lawyer, diplomat, journalist and politician. His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956, which became his well-known novel. Now, I come to the title of the story, which is The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady is a part of autobiography by Khushwant Singh. In this story, the author draws a pen portrait of his grandmother. The word portrait means picture or photo. But here, in this title, the word portrait means character sketch of a lady who she is his grandmother. Means he beautifully creates a beautiful character sketch of his grandmother in reader's mind through his writing. Now, coming to the next point, which is chapter sketch and about the characters. Khushwant Singh beautifully unfolds the relationship with his grandmother and how it undergoes several changes. In other words, the story is a loving tribute of a grandson to his grandmother. The story gives a picture of human relationships. It is a realistic account of how the grandparents give all their time, love, care and attention to their grandchildren. And when we talk about the protagonists mean main characters. Here we have only two main characters in this story, and they are the narrator himself, means Khushwant Singh, and his grandmother. Now I am going to explain the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ, जैसे कि हर किसी की दादी माँ होती हैं, एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Last 20 years से जब से मैं उन्हें जानता हूँ, तब से वो ऐसी ही बूढ़ी और इतनी ही झुर्रियों से भरपूर थी. उनका फेस wrinkled था, पूरा झुर्रियों भरा हुआ. People said that she had once been young and pretty and had even a husband. लोग कहते थे कि वो कभी यंग और प्रिटी यानी खूबसूरत हुआ करती थी और इवन उनके एक हस्बैंड भी थे. But that was hard to believe. लेकिन मेरे लिए ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी का एक पोर्ट्रेट मैंटलपीस कहते हैं एक संगमरमर की या वुडन चार दीवारी सी बना दी जाती है फायर प्लेस पे या उसके ऊपर, तो उसके ऊपर ड्राइंग रूम में उनके दादाजी का पोर्ट्रेट टंगा हुआ था. He wore a big turban and loose fitting clothes. वो बिल्कुल बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे पिक्चर में और ढीले ढाले फिटिंग के कपड़े पहने थे. His long white beard covered the best part of his chest. उनकी लंबी सी सफेद दाढ़ी उनके चेस्ट का पूरा पार्ट कवर करती थी. And he looked at least 100 years old. और वो लगभग 100 साल बूढ़े दिखाई देते थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. उनकी पिक्चर को देखकर ऐसा मुझे नहीं लगता था कि वो इस तरह के आदमी हैं जिनकी एक बीवी और बच्चे होंगे. He looked as if he could only have
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। उनको देख के सिर्फ ऐसा लगता था कि उनके ढेर सारे पोता पोती होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. दादाजी की पिक्चर को देख के और दादी जी को जिस तरह से मैंने झुर्रियों से भरपूर और बूढ़ा देखा था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था विश्वास करना कि वो कभी भी यंग और प्रिटी रही होंगी। She often told us of the games she used to play as child. अक्सर वो हमको बताया करती थी कि जब वो छोटी बच्ची थी तो कौन कौन से गेम्स खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. उनके पार्ट पर ये मुझे बहुत अजीब सा लगता था और हम लोग उसको ऐसे लेते थे जैसे वो हमको परियों की कथा सुनाती थी। उसी तरह से उनकी बताई हुई इन बातों को लेते थे कि वो बचपन में कभी गेम्स खेला करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से शॉर्ट हाइटेड थी और थोड़ी सी मोटी और उनका बॉडी थोड़ा सा झुका हुआ था, जैसा कि ओल्ड एज में हो जाता है। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जो पूरे चेहरे पे झुर्रियां दौड़ती सी नजर आती थी। No, we were certain she had always been as we had known her. हम लोग ये निश्चित थे कि वो जैसी हैं वैसी ही हमेशा रही होंगी बूढ़ी। Old, so terribly old, बिल्कुल बुरी तरह बूढ़ी, that she could not have grown older and had stayed at the same age. इतनी बूढ़ी कि वो उससे ज्यादा बूढ़ी और हो ही नहीं सकती और उसी एज पर आकर रुक गई है। Could never have been pretty, but was always beautiful. इस सेंटेंस में एक बात गौर करने की है कि राइटर ने प्रिटी और ब्यूटीफुल दो वर्ड यूज किए हैं। प्रिटी मीन्स खूबसूरत, कोई भी मेकअप करके भी प्रिटी बन सकता है, बट व्हेन वी यूज ब्यूटीफुल वर्ड मतलब शी वाज इनसाइड beautiful. So here is the difference in pretty and beautiful. She hobbled about the house in spotless white. Hobbled means walking with difficulty because उनका body bent था और old age में थी, तो वो पूरे घर में spotless white color की साड़ी पहनकर difficulty से walk किया करती थी, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. एक हाथ उनका अपनी कमर पर वेस्ट पर होता था जिससे कि वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर सके चलते वक्त, और दूसरे हाथ में जाप करने वाली माला आपने देखी होगी, अक्सर बूढ़े लोग जप करते हैं, वो माला हाथ में लेकर वो उसका जाप किया करती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. उनके बाल चूंकि बिल्कुल सफेद थे, वाइट थे, तो चांदी के तारों की तरह उनके पीले से पड़ गए चेहरे पर, पकड़ मीन्स रिंकल्ड चेहरे पर फैले रहते थे। Her lips constantly moved to inaudible prayer, but उनके होंठ constantly inaudible prayer मतलब वो अपने आप में ही कोई प्रेयर बुदबुदाया करती थी जो लोगों को सुनाई नहीं पड़ता था। Yes, she was beautiful. हाँ, वो खूबसूरत थी। She was like the winter landscape in the mountains. वो बिल्कुल आपने अगर आप माउंटेन्स पे जाओगे जाड़ों में, जिस तरह से वाइट फैला रहता है एक एक्सपेंस, दूधिया सा कलर, और जैसी शांति वहाँ पे लगती है, वैसा ही कुछ उनको देखकर नजर आता था। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. एकदम दूधिया सा रंग उनका और शांति से भरा हुआ और अपने आप में संतुष्ट आत्मा की तरह पूरे घर में इनऑडिबल प्रेयर करते हुए, अपनी माला जपते हुए वो घूमा करती थी। My grandmother and I were good friends. मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together.
मेरे पेरेंट्स ने मुझको उनके साथ छोड़ दिया था जब वो शहर में रहने के लिए गए थे, और हम दोनों यानी मैं और मेरी दादी माँ कॉन्स्टेंटली एक साथ थे। शी यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह सुबह जगा दिया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो अपनी मॉर्निंग की प्रेयर सुबह सुबह जो प्रार्थना करते हैं वो लगातार सिंग सॉन्ग यानी रिदमिक वे में गुनगुनाया करती थी, और जब मुझे वो स्नान कराती थी और स्कूल के लिए ड्रेसअप करती थी, तैयार करती थी। उसके लिए पीछे उनकी आशा क्या होती थी? उनकी होप ये होती थी कि शायद उनका वो प्रेयर गाना सुनकर मैं भी उसको कंठस्थ कर लूँ, याद कर लूँ। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। मैं उनकी प्रेयर सुनता ज़रूर था क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट लेकिन मैंने कभी उस प्रार्थना को याद करने के लिए कष्ट नहीं किया। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद वो मेरी लकड़ी की बनी हुई स्लेट, जिसको पहले ही उन्होंने प्लास्टर से येलो कलर के चॉक से पेंट कर रखा होता था, और एक मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट और साथ में एक रेड पेन, सबको एक बंडल बांध के वो मेरे को हैंड ओवर कर देती थी, यानी मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। उसके बाद एक छोटा सा हल्का सा नाश्ता होता था जिसमें एक मोटी सी स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स बासी रोटी, मोटी सी बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन और शुगर, चीनी वो स्प्रेड कर देती थी, और उसको खाने के बाद हम स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. बहुत सारी बासी रोटियां वो अपने साथ ले जाती थी रास्ते में डॉग्स को, गांव के जो डॉग्स होते हैं सड़कों पे घूमते हैं उनको देने के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी क्योंकि उस स्कूल के साथ एक टेम्पल भी साथ में ही अटैच था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. Priest means पुजारी। पुजारी हमें अल्फाबेट्स और सुबह की प्रार्थना याद कराया करते थे, जबकि बच्चे सामने के वरांडा में एक रो में बैठ जाते थे और उनके बाद अल्फाबेट्स और वो मॉर्निंग प्रेयर कोरस में यानी एक साथ रिपीट किया करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड बैक टुगेदर। मेरी ग्रैंड मदर साथ के टेम्पल में बैठकर स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में अक्सर दीवारों पर कुछ रामायण की चौपाइयाँ या कुछ भजन या आरती लिखी होती है या वेदों की कुछ बातें, श्लोक लिखे होते हैं। तो स्कूल से लगा जो मंदिर था उसमें बैठकर उतने समय तक मेरी दादी माँ उस पर लिखी हुई स्क्रिप्चर्स को, उस श्लोकों को पढ़ा करती थी। और जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, यानी मेरा स्कूल और दादी माँ की प्रेयर, देन हम दोनों साथ में वापस घर चले जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. लौटते वक्त गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वे हम लोगों को घर तक पीछा किया करते थे, चिल्लाते, भौंकते और एक दूसरे से झगड़ा करते। किस लिए? जो रोटियां हम उनकी तरफ फेंकते थे उनके लिए आपस में झगड़ा करते थे।
When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स शहर में कंफर्टेबली सेटल हो गए, प्रॉपरली रहने लगे, तो उन्होंने हम लोगों के लिए बुलावा भेज दिया, यानी हम लोगों के शहर जाने का वक्त आ गया था. That was a turning point in our friendship. अब हमारी दोस्ती ने एक नया मोड़ ले लिया था. Although we shared the same room, my grandmother no longer to school with me. हालांकि हम एक ही रूम में रहते थे, एक ही कमरा शेयर करते थे, लेकिन अब मेरी ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ मुझे स्कूल तक छोड़ने नहीं जाती थी. I used to go to an English school in a motor bus. मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा मोटर बस के द्वारा. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of the city house. कोई कुत्ते रास्ते में नहीं मिलते थे और वो अब स्पैरोज को, यानी घर में जो चिड़िया आती हैं, गौरैया, उन्होंने उनको दाना खिलाना शुरू कर दिया. कहाँ पर? शहर का जो घर था उसके कोर्टयार्ड यानी आंगन या दाना. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, साल बीतते गए, हम एक दूसरे को कम ही देख पाते थे. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask what the teacher had taught me. कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए रेडी करना जारी रखा, और जब मैं लौट कर घर आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उनको कुछ इंग्लिश वर्ड्स और वेस्टर्न साइंस जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता था और जो भी मैं स्कूल में सीखता था वो बताता था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, एटसेट्रा. जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी और दुनिया गोल है, ये सब वगैरह वगैरह. दिस मेड हर अनहैप्पी. ये सुनकर वो अनहैप्पी, नाखुश हो जाती थी. She could not help me with my lessons. वो मुझे मेरे लेसन्स में, मैं जो कुछ भी पढ़ता था उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाती थी. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. वो जो चीज़ें हमें स्कूल में पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, उनमें विश्वास नहीं करती थी जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, और इस बात से बड़ी डिस्ट्रेस, बड़ी डिस्टर्ब हो जाती थी कि स्कूल्स में गॉड के बारे में या उनके स्क्रिप्चर्स, उनके लिखी बुक्स के बारे में, जैसे गीता है, रामायण है, उसके बारे में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन घर आकर मैंने बताया कि हमें स्कूल में म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं, यानी म्यूजिक सिखाया जा रहा है. She was very disturbed. वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई. To her, music had lewd association. उनके मुताबिक या उनके ख्याल से म्यूजिक का जो संबंध था वो निम्न स्तरीय लोगों से था. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. उनके ख्याल से म्यूजिक वेश्याओं और भिखारियों की चीज थी, उनके जानने की चीज थी, उनके गाने बजाने के लिए था, और कोई भी सज्जन व्यक्ति का इससे कोई संबंध नहीं था. She said nothing, but her silence meant disapproval. उन्होंने कहा तो कुछ नहीं जब उनको बताया गया कि मुझे म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं, लेकिन साइलेंस, उनका साइलेंस ही उनका डिसअप्रूवल था, यानी उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया. She rarely talked to me after that. इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद उन्होंने मुझसे बड़ी मुश्किल से ही बात की. When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे मेरे लिए एक अलग कमरा दे दिया गया. The common link of friendship was snapped. जो हम दोनों के बीच कॉमन लिंक था, वो एक कमरा, हम दोनों एक कमरे में अब तक रहते थे, वो कॉमन लिंक अब खत्म हो गया था, छीन लिया गया था. My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी ग्रैंडमदर ने, मेरी दादी माँ ने
अपना सेक्लूजन यानी लोनलीनेस रेजिग्नेशन के साथ एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब वो अपना चरखा जो वो दिन भर काटती रहती थी, वो अपना स्पिनिंग व्हील मुश्किल से ही छोड़ती थी किसी से बातचीत करने के लिए। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. सूरज उगने से सूरज डूबने तक वो अपने चरखे पर बैठी रहती थी और अपनी प्रेयर्स बुदबुदाया करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. केवल उस वक्त वो थोड़ा सा आराम करती थी, दोपहर के वक्त जब स्पैरोज को या गौरैयों को खाना खिलाने के लिए जाती थी। While she sat in the veranda, breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. जब वो बरामदे में बैठ के ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े किया करती थी चिड़ियों को खिलाने के लिए, सैकड़ों चिड़िया मतलब हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स उनके चारों ओर आकर कलेक्ट हो जाते थे, उनको घेर लेते थे और चर्पिंग यानी अपनी चहचहाहट से पूरा शोरगुल किया करते थे। Some came and perched on her legs. कुछ आकर उनके पैरों पर बैठ जाते थे, other on her shoulders, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते थे, some even sat on her head. यहाँ तक कि कुछ उनके सर पर आकर बैठ जाया करती थी। She smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उनको शू करके भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day for her. उनके लिए ये पूरे दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड किया कि विदेश जाकर फर्दर स्टडीज करनी है, आगे की पढ़ाई करनी है, मैं श्योर था कि मेरी ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ इससे बहुत दुखी हो जाएंगी, बहुत अपसेट हो जाएंगी। I would be away for 5 years and at her age no one could tell. मैं 5 साल के लिए देश से बाहर विदेश में रहने वाला था पढ़ाई के लिए, और जो उनकी उम्र थी, जो उनकी उम्र हो चुकी थी, कोई कह नहीं सकता कि कल को मुलाकात हो या ना हो। बट माई ग्रैंडमदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर कर सकती थी, वो जानती थी क्या होना है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई जरा भी, उन्होंने कोई भी भावुकता नहीं दिखाई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने ज़रूर आई थी, बट ना तो उन्होंने मुझसे कोई बात की और ना ही किसी प्रकार की कोई इमोशन शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके होंठ लगातार प्रेयर बुदबुदा रहे थे और उनका दिमाग प्रार्थना में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। उनकी फिंगर्स, उनके हाथ लगातार अपनी माला जपने में लगे हुए थे। साइलेंटली शी किस्ड माई forehead and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. धीरे से उन्होंने मेरे फोरहेड पर, मेरे माथे पर किस किया और जब मैं वहाँ से जाने लगा, मैं इस घटना को, इस किस को हमारे बीच के लास्ट लगभग फिजिकल कांटेक्ट के रूप में याद करता हूँ या एंजॉय करता हूँ। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। After 5 years, I came back home and was met by her at the station. ऐसा नहीं था, मैं 5 साल के बाद पढ़ाई पूरी करके वापस आया और उनसे स्टेशन पर मिला। She did not look a day older. वो एक भी दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। She still had no time for words. उनके पास अभी भी वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। And while she clasped me in her arms and could hear her reciting her prayers. जैसे ही उन्होंने मुझको अपनी आर्म्स में भरा, हग किया, मैं अभी भी सुन पा रहा था कि वो प्रार्थना बुदबुदा रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes.
इवन पहले दिन जिस दिन मैं आया उस दिन भी उनका सबसे खुशनुमा घंटा जो था वो उनकी चिड़ियों के साथ बीता, जिनको उन्होंने लंबे समय तक खूब खिलाया और विद फ्रिवलस रिब्यूक्स मतलब मीठी सी झिड़कियों के साथ। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को उनके में एक बदलाव आ गया। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने जो रोज प्रार्थना करती रहती थी कंटिन्यूअस, वो प्रार्थना नहीं की शाम को। She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को कलेक्ट कर लिया और एक पुराना सा ड्रम ले आई और गाना गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. कई घंटों तक लगातार वो एक डायलापिडेटेड मीन्स फटा हुआ पुराना ड्रम लगातार पीटती रही और जैसा सैनिकों के आने पर वापसी में गाना गाया जाता है घर वापस आने पर, वैसा कुछ गाना कंटिन्यूअस गाती रही। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हमें उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा बार बार ताकि वो रुक जाएं, उनको ओवरस्ट्रेनिंग ओवर स्ट्रेस ना हो। That was the first time since I had known her that she did not pray. जब से मैं उनको जानता हूँ वो एक पहला दिन ऐसा था, पहला मोमेंट ऐसा था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। The next morning she was taken ill. दूसरी सुबह वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever. हल्का सा बुखार था। The doctor told us that it would go. डॉक्टर ने हमको बताया उनकी जांच करने के बाद कि बुखार चला जाएगा। But my grandmother thought differently. लेकिन मेरी माँ, दादी माँ दूसरी तरीके से सोच रही थी। She told us that her end was near. उन्होंने हमको बताया कि उनका अंत नजदीक है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life. उन्होंने हमको ऐसा अपने जीवन का आखिरी अध्याय, आखिरी चैप्टर खत्म होने के कुछ समय पहले बताया। She had omitted the prayer. उन्होंने प्रार्थना बंद कर दी थी। She was not going to waste any more time talking to us. अब हमसे बातचीत करने में वो अपना बाकी समय, बचा समय व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। We protested. हमने बहुत मना किया, उनको रोकने की कोशिश की, but she ignored our protest. लेकिन हमारी कोई भी प्रोटेस्ट, हमारी कोई भी रिक्वेस्ट उन्होंने नहीं सुनी, उसको इग्नोर कर दिया। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वो शांति से अपने बेड पर लेटी रहीं, प्रार्थना करती रहीं और अपनी माला जपती रहीं। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell down from lifeless fingers. इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उनके होंठ बुदबुदाना बंद हो गए और उनकी माला, उनकी रोजरी, उनकी लाइफलेस फिंगर्स, उनकी जान विहीन उंगलियों से छूटकर नीचे गिर पड़ी। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांतिपूर्ण एक पैलर, पीला सा रंग उनके पूरे चेहरे पर फैला हुआ था और हम समझ गए थे कि उनकी डेथ हो चुकी है। We lifted her off the bed and as a customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उनको बेड से नीचे उतार दिया और जैसा कि हमारे यहाँ के रीति रिवाज हैं, उनको जमीन पर लिटा दिया और उनको लाल रंग के कवर से, एक श्राउड या कफन से ढक दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ समय तक शोक करने के बाद हमने उनको अकेला छोड़ दिया ताकि हम उनके फ्यूनरल की, अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सकें, तैयारी कर सकें। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. शाम को उनके रूम में हम गए, एक क्रूड स्ट्रेचर जो लकड़ी की बनी हुई अर्थी होती है उस पे उसको लेकर, ताकि हम उनको ले जा सकें उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूरज डूब रहा था और डूबते हुए सूरज की रोशनी, हल्की पीली सी गोल्डन लाइट उनके रूम और वरांडा तक पूरी भरी हुई थी। We stopped halfway in the courtyard. हमें कोर्टयार्ड तक जाने में फिर रुकना पड़ गया।
all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. जहां पर वो लेटी हुई थी वहां से लेकर वरांडा तक पूरे कोर्टयार्ड में हजारों स्पैरोज भरी हुई थी और बैठी हुई थी. देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन कोई चहचहाहट, कोई आवाज नहीं हो रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों के लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि दादी माँ रोज उनको ब्रेड क्रम्स डाला करती थी उनके खाने के लिए. एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ अंदर से कुछ ब्रेड उनके लिए ले आई उनको देने के लिए. शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी दादी माँ छोटे छोटे टुकड़े करके ब्रेड के चिड़ियों को खिलाया करती थी, मेरी माँ ने उन ब्रेड के टुकड़े कर उनको खिलाने की देने की कोशिश की. एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ वो ब्रेड टुकड़े फेंके. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने, चिड़ियों ने उन ब्रेड क्रम्स को, उन टुकड़ों के ऊपर कोई नोटिस नहीं किया, खुद देखा भी नहीं. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हम अपनी दादी माँ की बॉडी को लेकर चले गए, वो चिड़िया शांति से उड़कर चली गईं. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. दूसरी सुबह स्वीपर को वो ब्रेड क्रम्स के टुकड़े साफ करके डस्टबिन में डालने पड़े. That's all about the chapter. I hope you have liked it and understood the chapter. And I'm sure by this writing, by this story, you all have remembered your own grandmother also. That is the impact of the writer. Thank you so very much.